Alright, good morning to each and every one of you. कैसे हैं आप सभी लोग? I hope all of you are doing fantastically well. Good morning, Megha Chaudhary. Good morning everyone. Am I live on YouTube? Yes, I'm live on YouTube as well. So good morning to each and every one of you. Good morning, Megha, Arshdeep, Pooja, Prantik, Lisha, Priyanka, Vinay. Good morning. कैसे हैं आप सभी लोग? Shakalaka boom boom. Highest marks in taxation. Vani, Keshav, Saurya, Sanket, Jinal. Good morning everyone. चलो, हाईएस्ट मार्क्स इन टैक्सेशन एंड एग्जाम ओरिएंटेड स्टडीज, ये तो हमारे एम्स हैं और इन दोनों एम्स को ध्यान में रखते हुए हम एक बार अपनी रिवीजन क्विज स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, व्हाट इज द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ओन्ड बाय 2 और मोर पर्संस विद डेफिनिट एंड ascertainable शेयर्स? टैक्स एज इनकम ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्संस, ईच co-owner's share income is determined under sections 22 to 25. Tax as the income of the eldest co-owner, yeah, divided equally regardless the ownership percentage. Come on. Very clear, simple question. Option B is the answer. Keshav, Shakalaka, Boom, Aditya, Priyanka, Jinal, Archie, Sneha, Purbita, Lisha, Ronak, Vani, Pooja, Pari, Zeenat, Prantik, Sanuj, Arshdeep, Pratham. Very nice. Next question. ये रहा आपके सामने. If co-owned house property is self-occupied by the co-owners, what is the annual value of the property of each co-owner? What is the annual value of the property of each co-owner? Equal to the rental value, nil, based on the market value, या determined by the local municipality? बिल्कुल सही जवाब, नील इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम एग्रीगेट डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर ईच को-ओनर ऑफ अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 24B? व्हाट इज द मैक्सिमम एग्रीगेट डिडक्शन? तो 50 लाख रुपीज, 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपीज या नो लिमिट? बिल्कुल सही जवाब, हर को ओनर को 2 लाख रुपए का डिडक्शन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द इनकम फ्रॉम अ लेट आउट प्रॉपर्टी ओन्ड बाय को-ओनर्स कंप्यूटेड फॉर टैक्स पर्पसेस? स्प्लिट इक्वली अमंग को-ओनर्स, computed as if owned by one owner and then apportioned. Each co-owner declares income based on the personal use. Only the co-owner living in the property declares the income. बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। जो लोग ए बोल रहे हैं वो गलत है, बी करेक्ट आंसर है कि पहले हम लोग इसको कंप्यूट करते हैं कि एज इफ एक ही ओनर है और उसके बाद उसको ओनरशिप के बेसिस पे अपोर्शन करते हैं। नेक्स्ट, अंडर व्हाट कंडीशन कैन co-owners of a self-occupied property be entitled to deduction under section 24B on account of interest on borrowed capital if they opt into the default tax regime, if they have no other property, if they opt out of the default tax regime, या without any conditions? बिल्कुल सही जवाब, केशव, आर्ची, शकालाका बूम बूम, जीनत, लीशा, साक्षी, लोकेश, स्नेहा, प्रियंका, मेघा, प्रांतिक, शिवराज, पूजा, जीनल, प्रेरणा, हेमंत, सईदा, वानी. Very good. Option C, if they opt out of the default tax regime. Next, what is the effect of co-owners owning another self-occupied or unoccupied property on interest deduction? It increases the deduction limit, no effect on the deduction limit, reduces the deduction limit, या aggregate interest deduction cannot exceed a certain limit. Come on. ऑलराइट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, एग्रीगेट इंटरेस्ट डिडक्शन एक सर्टेन लिमिट को एक्सीड नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इंटरेस्ट डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अलाउएबल अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम टू को-ओनर्स? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में उसका डिडक्शन मिलता है क्या? बिल्कुल सही जवाब, केशव, आर्ची, मनीष, प्रांतिक, मेघा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कोई डिडक्शन नहीं मिलता है न्यू स्कीम में। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर इंटरेस्ट ऑन लोन का कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। Miss Aparna co-owns a residential house property with her sister. If they both opt out of the default tax regime, what is the maximum deduction under section 24B available to Miss Aparna if the total interest on loan comes out to 4,60,000 rupees? बताइए। Miss Aparna co-owns a residential house property with her sister. If they both opt out, तो क्या हो जाएगा? ये मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिल जाएगा? ऑलराइट, द मैक्सिमम डिडक्शन इज सी। ठीक है, 2 लाख रुपए का ही मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा, तो दोनों को भले ही 230 का आ रहा है, लेकिन यहां पर ये 2 लाख रुपए का ही मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिटरमिन्स द शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम अ को-ओन्ड प्रॉपर्टी टू बी इंक्लूडेड इन एन इंडिविजुअल्स असेसमेंट? द साइज ऑफ द प्रॉपर्टी, द इंडिविजुअल्स इनकम लेवल, सेक्शंस 22 to 25 ऑफ द इनकम टैक्स लॉ, या म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन को-ओनर्स? क्लियर है, ऑप्शन सी, सेक्शंस 22 to 25. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर co-owned properties under which section can co-owners get a deduction for interest on borrowed capital? For co-owned properties under which section can co-owners get a deduction for interest on borrowed capital? सेक्शन 22, 24B, 115 BSE 1A या सेक्शन 26? बिल्कुल सही जवाब, सेक्शन 24B. नेक्स्ट क्वेश्चन,
Ganesh and Rajesh are co-owners of a self-occupied property. They own 50% share each. The interest paid by each co-owner during the previous year 24-25 on loan taken for acquisition of house property in the year 2007 is 2,05,000 rupees. Both Ganesh and Rajesh have opted to shift out of the default tax regime under section 115 BSE 1A. The amount of allowable deduction in respect of each co-owner is, बताओ. Alright, sorry. तो जितने भी लोग बी बोल रहे हैं, अगेन आप लोग गलत बोल रहे हैं. आप लोगों ने सिंपली 2,05,000 रुपीज डिवाइडेड बाई 2 कर दिया. दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. पहली बात तो दोनों ने 2,05,000 रुपए दिए. ठीक है, दोनों ने 2,05,000 रुपए दिए, लेकिन क्योंकि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है इसलिए 2 लाख रुपए तक का ही डिडक्शन मिलेगा. ठीक है. नेक्स्ट, इफ टू को ओनर्स ईच own 50% of a property and total annual interest on borrowed capital is 4 lakh rupees, how much interest can each co-owner claim as deduction if they are under the default tax regime? If two co-owners each own 50% of a property and the total annual interest on borrowed capital is 4 lakh rupees, कितना claim कर सकते हैं? बिल्कुल सही जवाब, 0. कुछ भी claim नहीं कर सकते क्योंकि ये default tax regime है. Now, a property is co-owned by 3 people with one person owning 50% and the other 2 owning 25% each. If the total annual interest on the property's loan is 6 lakh rupees, how much interest can the majority owner claim as a deduction if they all opt out of the default tax regime? बताइए कितने का डिडक्शन वो लिया जा सकता है? बिल्कुल सही जवाब, 2 लाख रुपए का लिया जा सकता है. ठीक है, ओल्ड स्कीम में 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन लिया जा सकता है. काफी अच्छा रिस्पॉन्स था आज क्विज में आप लोगों का. वेल डन, वेल डन एवरीवन. बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स था आज आप लोगों का क्विज में. एंड दिस इज जस्ट दिस कॉल्स फॉर सेलिब्रेशन. बहुत बहुत मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो थोड़े से ट्रिकी भी थे उनका भी आप सब लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया एंड दैट इज जस्ट ग्रेट. चलिए, हाईएस्ट मार्क्स इन टैक्सेशन एंड एग्जाम ओरिएंटेड स्टडीज वाले एम को ध्यान में रखते हुए हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. एंड लेट्स नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 20. ठीक है, लेट्स नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 पर हम लोग आएंगे. एक मिनट रुकना आप लोग बस. ओके, देखो अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन है, काफी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, बहुत सारी चीजें इस वाले क्वेश्चन में कवर होंगी. तो देखो, 2 brothers अरुण एंड बिमल आर को ओनर्स ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी. दिख रहा है? यस, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है. अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन है, कवरिंग एवरीथिंग. तो बहुत सारी चीजें आप लोगों की यहां पर कवर होंगी, बहुत मजा आएगा. ठीक है, जितने भी थोड़े बहुत अभी इधर उधर के डाउट्स भी बचे होंगे वो सारे के सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे यहां पर. तो देखो, 2 brothers अरुण एंड बिमल आर को ओनर्स ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी विद इक्वल शेयर. तो ये एक हाउस प्रॉपर्टी के को ओनर्स हैं, दोनों का बराबर बराबर शेयर है. द प्रॉपर्टी वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 16-17. द प्रॉपर्टी कंसिस्ट्स ऑफ 8 आइडेंटिकल यूनिट्स एंड इज सिचुएटेड एट कोचिन. ओके, तो प्रॉपर्टी में 8 आइडेंटिकल यूनिट्स हैं. प्रॉपर्टी में 8 आइडेंटिकल यूनिट्स हैं. ये है इस प्रॉपर्टी की 8 आइडेंटिकल यूनिट्स. During the financial year 24-25, each co-owner occupied 1 unit for residence and the balance of the 6 units were let out at a rent of 12,000 rupees per month per unit. ठीक है, तो अब 2 co-owners हैं अरुण और बिमल. सपोज यहां पर अरुण ने रहना शुरू किया, यहां पर बिमल ने रहना शुरू किया और ऊपर की जितनी भी 6 हैं उनको किराए पर दे दिया. और जो किराया आ रहा है वो आ रहा है 12,000 रुपए पर मंथ पर यूनिट. हर यूनिट से 12,000 रुपए पर मंथ का किराया आ रहा है. The municipal value of the house property is 9 lakh rupees and the municipal taxes were 20% of the municipal value, okay, which were paid during the year. Other expenses were as follows: repairs, insurance premium paid, interest payable on loan taken for construction of house. One of the let out units remained vacant for 4 months during the year. ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, अभी फिलहाल के लिए क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस प्रॉपर्टी का जो 2/8 पोर्शन है, 2/8 पोर्शन है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है और जो 6/8 पोर्शन है वो लेट आउट प्रॉपर्टी है? बिल्कुल ऐसा बोल सकता हूं. प्रॉपर्टी टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है. इसका 2/8, 2/8 मतलब कितना आता है? 2/8 ये आता है 25%. तो 25% ऑफ द प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड. 25% of the property is self-occupied and 75% of the property is let out
ठीक है। 2/8, क्योंकि 8 में से 2 फ्लैट्स सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो 2/8 ऑफ द प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड, दैट इज 25% इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, एंड 8 में से 6 फ्लैट्स यानी 75% इज लेट आउट। 75% आपका लेट आउट है। ओके, तो ये पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी हो गई एरिया वाइज, जिसमें 25% सेल्फ ऑक्यूपाइड है, 75% लेट आउट है। अब यहां पर बोला गया कि ये जो 6 यूनिट्स हैं, इनमें से एक यूनिट 4 महीने के लिए खाली पड़ी रही। ठीक है, वन ऑफ द लेट आउट यूनिट्स रिमेन्ड वेकेंट फॉर 4 मंथ्स ड्यूरिंग द ईयर, तो इनमें से एक यूनिट 4 महीने के लिए खाली पड़ी रही। कोई बात नहीं। अरुण कुड नॉट ऑक्यूपाई हिज यूनिट। अच्छा, तो टोटल रेंटल इनकम एक बार देखें हम लोग, टोटल रेंटल इनकम हमारे पास आई कितनी होगी? जो 5 यूनिट्स हैं उन पे तो 12,000 रुपए पर मंथ का रेंट आया होगा 12 महीनों के लिए, और जो एक यूनिट है उस पे 12,000 रुपए पर मंथ का रेंट आया होगा 8 ही महीने के लिए। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? 6 यूनिट्स में से एक यूनिट 4 महीने के लिए खाली रही। One of the let out units remained vacant for 4 months during the year. ठीक है, और सारी की सारी जो यूनिट थी वो 12,000 रुपए पर मंथ पर यूनिट पर लेट आउट थी। तो 12,000 रुपए पर मंथ पर यूनिट, टोटल 6 यूनिट्स है, 5 यूनिट्स तो पूरे 12 महीनों के लिए लेट आउट थी, तो 12,000 रुपए फॉर 12 मंथ्स, और ये 5 यूनिट्स थी। 12,000 रुपए 8 महीनों के लिए एक यूनिट थी। ठीक है, तो जो टोटल एक्चुअल रेंट हमारे पास आया है वो कितना है? 5 इंटू 12,000 इंटू 12 एम प्लस 1 इंटू 12,000 इंटू 8 एम प्लस, ये आया हमारे पास 8,16,000 रुपए। 8,16,000 रुपए। अच्छा, वैकेंसी रेंट भी निकाल लेते हैं एक बार। वैकेंसी रेंट आएगा 12,000 रुपए इंटू 4, 48,000। ठीक है, 12,000 रुपए इंटू 4 यानी ये आएगा 48,000 प्लस 48,000, ये आया 8,64,000। ठीक है, वैकेंसी रेंट आ गया आपका 48,000, तो ये जो एक्चुअल प्लस वैकेंसी आ गया, दिस विल बी 8,64,000। आगे देखते हैं। The other income of Mr. Arun and Mr. Bimal are 2,90,000 and 1,80,000 respectively. इनकी other incomes हैं for the financial year 24-25. Compute the income under the head income from house property and the total income of the two brothers for assessment year 25-26 if they pay tax under the default tax regime under section 115 BAC 1A. Also show the computation of income under this head if they both exercise the option of shifting out of the default tax regime provided under section 115 BAC 1A. ठीक है, न्यू स्कीम ओल्ड स्कीम दोनों से करना है भाई। बहुत ही तगड़ा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, बड़ा मजा आएगा। ये दो क्वेश्चंस हम लोग आज जो करने वाले हैं ना, ये दो क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21, इनमें कुछ नया नहीं है, कुछ भी इसमें नया नहीं है, लेकिन इन दो क्वेश्चन से आपके इतने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे जो आप लोग सोच भी नहीं सकते अभी। अगर किसी को थोड़ा बहुत भी कहीं से भी कंफ्यूजन है ना, यू विल गेट सो मच कॉन्फिडेंस इफ यू सॉल्व जस्ट दीस टू क्वेश्चंस विद मी। ठीक है, तो आओ देखो, सबसे पहले हम लोग यहां पर करेंगे लेक्चर 10, चैप्टर 4, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पार्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कौन सा पार्ट चल रहा है? पार्ट 6। ऑलराइट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पार्ट 6। आज की तारीख 23 अगस्त। ठीक है, अब यहां पर आएगा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोगों को निकालना क्या है? हम लोगों को पहले तो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और टोटल इनकम निकालनी है, और उसके बाद हम लोगों को निकालना है ओल्ड स्कीम से। ठीक है, तो पहले हम लोग निकालते हैं अंडर द default tax regime. Under the default tax regime, computation of total income of Arun and Bimal. Computation of total income of Arun and Bimal. Particulars अरुण बिमल। ठीक है, पर्टिकुलर्स अरुण बिमल। यहां पर आप लिखोगे इनकम फ्रॉम
हाउस प्रॉपर्टी और यहां लिखोगे अदर इनकम, यहां लिखोगे टोटल इनकम। ठीक है, आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अदर इनकम और टोटल इनकम। अदर इनकम कितनी है? 290 और 180, 290 और 180, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अभी निकालेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। particulars, self-occupied portion 25%, let out portion 75%. म्यूनिसिपल वैल्यू, म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी है? म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इज 9 लाख रुपीज। तो 9 लाख का 75% यहां पर लेंगे हम लोग। दिस इज 6,75,000। ठीक है, लेट आउट पोर्शन लेंगे ना, 6,75,000 रुपीज ये लिया। फिर फेयर रेंट, हायर ऑफ 1 and 2, स्टैंडर्ड रेंट, expected rent, lower of 3 and 4, actual rent, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसके लिए वर्किंग नोट 1 बनाना पड़ेगा। ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए तो वर्किंग नोट 1 बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि वैकेंसी भी है। लेस municipal taxes paid net annual value, less deductions under section 24, under section 24A 30% of NAV, under section 24B interest on loan, income from हाउस प्रॉपर्टी। ठीक, अरे भाई, तो ये आया आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आने के बाद हम लोग यहां पर बोलेंगे शेयर ऑफ अरुण 50%, शेयर ऑफ बिमल 50%। ठीक है, शेयर ऑफ अरुण और शेयर ऑफ बिमल 50-50%। अब देखो फेयर रेंट कितना है? फेयर रेंट के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन दी ही नहीं है, तो फेयर रेंट कुछ आएगा ही नहीं। तो दिस विल बी 6,75,000। उसके बाद व्हाट इज द स्टैंडर्ड रेंट? स्टैंडर्ड रेंट के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट है वो भी आएगा 6,75,000। एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट के लिए आप यहां पर ऐसे ही लिख सकते हो। एक्चुअल रेंट के लिए आप लिख सकते हो
12,000 रुपए इंटू 5 इंटू 12 प्लस 12,000 रुपए इंटू 1 इंटू 8। ठीक है, तो 8 महीने के लिए 1 यूनिट और 12,000 इंटू 5 इंटू 12। जो 5 यूनिट्स हैं उनमें 12 महीनों के लिए जो 5 यूनिट्स हैं उनमें 12,000 रुपए मिला फॉर ऑल द 12 मंथ्स एम प्लस, और जो 1 यूनिट है उस पे 12,000 रुपए मिला फॉर 8 मंथ्स एम प्लस। एमआरसी आ जाएगा 8,16,000। वेकेंसी अगर आप नहीं भी बनाओगे तब भी जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है वो 8,16,000 ही आएगी। मतलब अगर आप उससे भी चलो कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज अ हायर ऑफ एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल या फिर एक्सपेक्टेड रेंट, तो भी आप देख लो 8,16,000 रुपीज ही है, बट स्टिल हम लोग एक बार बना लेंगे। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड is 8,16,000. वेकेंसी रेंट 1 यूनिट है, 12,000 रुपए मिल रहा है उससे, और 4 मंथ्स मिलता और तो 48,000। फिर आप लिखो टोटल इज 8,16,000 प्लस 48,000, तो टोटल कितना आता? 8,16,000 प्लस 48,000, यह आता 8,64,000, यह आता 8,64,000। ठीक है, अब सिंस एक्चुअल रेंट प्लस वेकेंसी रेंट इज ग्रेटर दैन एक्सपेक्टेड रेंट, GAV will be equal to actual rent, that is 8,16,000। ठीक है, 8,16,000 ही आ गया। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड 20% ऑफ द म्यूनिसिपल वैल्यू, 20% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू, तो ये आएगा आपका 20% ऑफ 675, 1,35,000, 1,35,000। ठीक है, और ये आ गई आपकी नेट एनुअल वैल्यू, $6,81,000। ठीक है, 6,81,000, दिस इज योर नेट एनुअल वैल्यू। 6,81,000, this is your net annual value. Now 30% of net annual value कितना होगा? 2,04,300। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना है? इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस 3 लाख रुपीज है। अब 3 लाख रुपीज में जो लेट आउट पोर्शन है उसका कितना आ जाएगा? 3 लाख का 75%, 2,25,000 रुपीज, 2,25,000 रुपीज। क्योंकि ये डिफॉल्ट स्कीम है इसलिए यहां पर कोई इंटरेस्ट ऑन लोन का भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो जो टोटल आएगा हमारा वो आएगा 6,81,000 माइनस 2,04,300 माइनस 225, ये आ गया 251,700, 251,700। ठीक है, अब ये 251,700 जो है इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 125,850, 125,850 और 125,850। ठीक है, तो 251,700 डिवाइडेड बाय 2, 251,700 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आया 125,850, 125,850। ठीक है, अब यहां पर आएगा आपका 125,850, 125,850। ठीक है, 125,850, 125,850। तो जो आपकी टोटल इनकम आएगी अरुण और बिमल की वो आएगी 415,850, आएगी 305,850, 305,850, 305,850। ठीक है, 305,850। आप यहां पर इंटरेस्ट और लोन पर वर्किंग नोट 2 लिखोगे
और यहां पर वर्किंग नोट 2 में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। वर्किंग नोट 2 में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन 3 लाख रुपीस attributable to self-occupied portion is equal to 25% of 3 lakh। 25% of 3 lakhs कितना आएगा? 75,000 attributable to let out portion 75% of 3 lakhs 2,25,000। ठीक है, attributable to let out portion ये आ गया 2,25,000। फिर लिखो interest on loan is not allowed as deduction from the NAV under the default tax regime। ठीक है, under the default tax regime, under the default tax regime। Done? I hope this is clear। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब ये तो आपका न्यू स्कीम से हम लोगों ने कर लिया, अब हमें ओल्ड स्कीम से करना है। तो यहां पर लिखो if Arun and Bimal decide to shift out of the default tax regime under section 115 BAC 1A, computation of total income। Particulars Arun, Bimal। देखो सबसे पहले करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आप देखो दोबारा से पूरा का पूरा लिखने की तो कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि लेट आउट पोर्शन वाली जो इनकम है वो तो यही होगी 125,850 और 125,850। तो दोबारा से पूरा का पूरा क्यों लिखे? ठीक है, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में होगा बस। और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में भी क्या होगा कि ये जो लेट आउट पोर्शन है ना, इस पर जो भी सॉरी ये जो सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन पर इंटरेस्ट है 75,000 रुपीज का, इसका अपोर्शनमेंट हो जाएगा। ठीक है, इस 75,000 रुपीज का दोनों लोगों को अपोर्शनमेंट मिल जाएगा। 75,000 डिवाइडेड बाई 2 कितना आता है? 75,000 डिवाइडेड बाई 2 आता है 37,500। 37,500 मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में 37,500 रुपीज का लॉस अरुण को होगा और 37,500 रुपीज का लॉस बिमल को होगा। यह बात समझ में आ रही है? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में 37,500 रुपीज का लॉस अरुण को होगा और 37,500 रुपीज का लॉस बिमल को होगा। यस, लिखो यहां पर
सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, नोट 3 में लिख देंगे इसको, चलो नोट 1 लिख देते हैं नीचे। 37,500 लेट आउट प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी से जो इनकम है वो क्या है? 125,850 और 125,850। तो जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आई दोनों की, वो क्या आई? 125,850 minus 37,500, this is 88,350, 88,350। और फिर आप करोगे अदर इनकम, अदर इनकम कितनी है? 290 और 180। ओके, $378,350, $268,350। ठीक है, अब आप लोग यहां पर लिखोगे नोट 1, नोट 1, और फिर यहां पर लिखो इन दी ऑप्शनल स्कीम deduction is allowed to each co-owner. In the optional scheme, deduction is allowed to each co-owner on self-occupied property as well, since the loan was taken for acquisition of house property. The limit for deduction of interest on loan is 2 lakh rupees each. Total interest on loan paid was 3 lakh rupees. Attributable to self-occupied portion 25% of 3 lakh 75,000. Therefore, each co-owner will get a deduction of 75,000 divided by 2 यानी 37,500 rupees. Each co-owner will get a deduction of 37,500 rupees. This will result in a loss of 37,500 rupees to each co-owner. This will result in a loss of 37,500 rupees to each co-owner. क्या ये बात आप सबको समझ में आ रही है? अब तो क्लियर हो ही गया होगा. This will result in a loss of 37,500 rupees to each co-owner. Done?
अब इससे ज्यादा क्लियर और क्या ही होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। श्रद्धा, संकेत, मुस्कान, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, वेरी 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 नाइस। डन। आर्ची, विनय, प्रियंका, अर्शदीप, चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया। आओ एक और क्वेश्चन करेंगे, आपके रोंगटे खड़े कर देगा ये वाला क्वेश्चन। नवंबर 2003 में, इसके बाद तो कोई डाउट बच ही नहीं सकता। A and B construct their houses on a piece of land purchased by them at New Delhi. नई दिल्ली में इन्होंने एक जमीन का टुकड़ा खरीदा, उस पर अपने अपने मकान बनाए। The built-up area of each house was 1000 square feet, ground floor and an equal area on the first floor. ठीक है, तो हर घर 1000 स्क्वायर फीट का था, ग्राउंड फ्लोर में था और इक्वली वो भी था, टॉप फ्लोर भी था। A starts construction on 1st April 2023 and completes it on 1st April 2024. तो ए ने कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट किया? प्रीवियस ईयर 24-25 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया, मतलब 23-24 का तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हो गया। B starts the construction on 1st April 2023 and completes the construction on 30th June 2024. B ने कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट किया? B ने 30th जून 2024 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया। B ने भी 24-25 में ही कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया, तो 23-24 उसके लिए भी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हो गया। A occupied the entire house on 1st April 2024. बताओ, A का काम बड़ा सिंपल हो गया। A के लिए पूरी की पूरी प्रॉपर्टी क्या हो गई? सेल्फ ऑक्यूपाइड, ग्राउंड फ्लोर भी और टॉप फ्लोर भी। B occupied the ground floor on 1st July 2024 and let out the first floor for a rent of 15,000 rupees per month. B ने 50% पोर्शन को सेल्फ ऑक्यूपाई किया और 50% पोर्शन को लेट आउट कर दिया। ये पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी एरिया वाइज हो गया। However, the tenant vacated the house on 31st December 2024 and B occupied the entire house during the period 1st January 25 to 31st March 2025. अब सुनो, B का जो टॉप फ्लोर था, जो इसने किराए पर दिया था, वो किराएदार 31 दिसंबर 2025 को छोड़ 31 दिसंबर 2024 को छोड़ के भाग गया। और अब जो बचे हुए 3 महीने थे साल के, उसमें B ने ही उस ऊपर वाले मकान को भी ऑक्यूपाई कर लिया। बी ने दूसरा किराएदार नहीं ढूंढा, बी ने ऊपर वाले मकान को भी खुद ही ऑक्यूपाई कर लिया। क्या यहां पर वेकेंसी हुई? बिल्कुल नहीं। लेकिन अब यहां पर पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी टाइम वाइज भी हो गया, क्योंकि जो ऊपर वाली यूनिट थी बी के घर की, उसमें दिसंबर तक वो लेट आउट था और दिसंबर के बाद वो सेल्फ ऑक्यूपाई हो गया। तो हम ऊपर वाली यूनिट को पूरे साल के लिए क्या मानेंगे? लेट आउट ही मानेंगे, क्योंकि यहां पर पार्टली लेट आउट टाइम वाइज में ये बोला गया है कि इवन इफ द यूनिट इज लेट आउट फॉर 1 डे, तब भी पूरे साल के लिए उसको लेट आउट मान लिया जाएगा। तो जो ए का मकान है उसमें तो कोई पंगा ही नहीं है, पूरा का पूरा सेल्फ ऑक्यूपाइड, मस्त है। ए से कोई मतलब नहीं है। जो बी का मकान है उसमें ध्यान देना है। बी का मकान 50% सेल्फ ऑक्यूपाइड, 50% लेट आउट। ठीक। फॉलोइंग आर अदर इंफॉर्मेशन। फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ ईच यूनिट, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर 1 लाख रुपीज पर ईयर। म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ ईच यूनिट, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर 72,000 रुपीज पर ईयर। मतलब ग्राउंड फ्लोर की अलग 72,000, फर्स्ट फ्लोर की अलग 72,000। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ए, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय बी। Repairs and maintenance charges paid by A, repairs and maintenance charges paid by B. A has availed a housing loan of 20 lakh rupees at 12% per annum on 1st April 2023. B has availed a housing loan of 12 lakh rupees at 10% per annum on 1st July 2023. No repayment was made by either of them till 31st March 2025. Compute income from house property for A and B for the previous year 24-25, assuming that they have decided to shift out of the default tax regime. Old scheme के हिसाब से हम लोगों को इसको सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक है, ओल्ड स्कीम के हिसाब से इसको सॉल्व करते हुए चलना है। परी कह रही है जस्ट रिसीव द बुक्स, दैट्स ग्रेट परी, कांग्रेचुलेशंस। ठीक है, आओ देखो अब ओल्ड स्कीम के हिसाब से हम लोगों को इसे सॉल्व करना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है, बहुत सारी चीजें यहां पर क्लियर होंगी। ठीक है, तो ये हम लोग करेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ income from house property of A for assessment year 25-26। पहले A का देख लेते हैं। A के लिए कोई खास पंगा ही नहीं है, सिर्फ पूरा का पूरा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मानी हुई है इसने। पर्टिकुलर्स रुपए, NAV नील है, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन
और फिर ये आ जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके लिए हम बनाएंगे वर्किंग नोट 1। इसके लिए हम बनाएंगे वर्किंग नोट 1। ठीक, और वर्किंग नोट हम बनाएंगे एकदम एंड में। अब यहां पर बनाओ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ बी फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ बी फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। particulars, self occupied portion 50%, let out portion 50%। Municipal value, fair rent, higher of 1 and 2, standard rent, expected rent, lower of 3 and 4, actual rent, gross annual value, higher of 5 and 6, less municipal taxes paid, net annual value, less deductions under section 24, under section 24A 30% of NAV, under section 24B interest on loan, and then we have income from house property। ठीक है, अब आओ एक एक करके हम लोग चीजें समझते हैं। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है, बी वेरी वेरी केयरफुल एंड अप्लाई योर ब्रेन, अपना दिमाग लगाना। ये जो बी का मकान है, इसका कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ है? इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, बी स्टार्ट्स द कंस्ट्रक्शन ऑन 1 April 23 एंड कंप्लीट्स द कंस्ट्रक्शन ऑन 30 June 2024। बी के मकान का कंस्ट्रक्शन 30 June 2024 को कंप्लीट हुआ है। क्या बी का मकान अप्रैल, मई और जून 2024 में किराए पर देने लायक था? फिर से मेरा सवाल सुनना, अप्रैल, मई और जून में बी का मकान किराए पर देने लायक था या नहीं था? नहीं था, बिल्कुल नहीं था। ओके, हम लोगों को 72,000 रुपीज पर ईयर म्यूनिसिपल वैल्यू दी हुई है, फर्स्ट फ्लोर की भी और ग्राउंड फ्लोर की भी। जो ग्राउंड फ्लोर है वो तो सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन है, उसको तो भाड़ में जाने दो। ठीक है, ये पूरे मकान की प्रॉपर्टी नहीं है, ये पूरे मकान की म्यूनिसिपल वैल्यू नहीं है। ग्राउंड फ्लोर की म्यूनिसिपल वैल्यू अलग है, फर्स्ट फ्लोर की म्यूनिसिपल वैल्यू अलग है। ठीक है, अब 72,000 रुपीज जो म्यूनिसिपल वैल्यू फर्स्ट फ्लोर की है, आप मुझे लॉजिकली बताओ, ये जो म्यूनिसिपल वैल्यू होगी ये तो 12 महीनों की दी हुई होगी ना? बिल्कुल 12 महीनों की दी हुई होगी। लेकिन अप्रैल, मई और जून में जब मकान किराए पर देने लायक था ही नहीं,
तो आपको नहीं लगता कि अगर मैं यहां पर म्यूनिसिपल वैल्यू पूरी की पूरी 72,000 रुपीज लिख लूंगा तो वो अनफेयर हो जाएगा? क्योंकि मुझे जो किराया मिलेगा, मुझे जो भी किराया मिलेगा वो तो अप्रैल मई जून में मिल ही नहीं सकता ना, क्योंकि वो तो सिर्फ 9 महीने का मिलेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ही कब कंप्लीट हुआ? 30 जून को कंप्लीट हुआ। और मैं उसको कंपेयर कर लूं म्यूनिसिपल वैल्यू पूरे पूरे साल की, तो आपको नहीं लगता कि ये गलत हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि म्यूनिसिपल वैल्यू मुझे सिर्फ 9 महीनों की लेनी चाहिए? 72,000 रुपीज मुझे पूरे 12 महीने की म्यूनिसिपल वैल्यू दी हुई है, लेकिन मेरा मकान रेडी ही 3 महीने बाद हुआ है ना, तो मुझे म्यूनिसिपल वैल्यू तो सिर्फ 9 मंथ्स की लेनी चाहिए। यस और नो? 54,000 रुपीज लेनी चाहिए। वेरी गुड। तो यहां मैं लिखूंगा वर्किंग नोट 2। ठीक है, यहां मैं लिखूंगा वर्किंग नोट 2। 72,000 इंटू 9/12 ये आएगा 54,000। ठीक। फेयर रेंट दिया हुआ है क्या? फेयर रेंटल वैल्यू दी हुई है 1 लाख रुपए पर ईयर। अगेन ये साल भर की दी हुई है, तो यहां पर भी आप लिखोगे वर्किंग नोट 2। एक ही वर्किंग नोट में म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट दोनों समझा देंगे। 9 महीने की लेंगे, 1 लाख इंटू 9/12 ये आ जाएगा 75,000। ठीक, विच एवर इज हायर, ये आया 75,000। स्टैंडर्ड रेंट दिया नहीं है मेरे ख्याल से ना, स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट भाड़ में जाए। ये आ जाएगा आपका एक्सपेक्टेड रेंट 75,000। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट आ गया आपका 75,000। ठीक, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल आपका कितना आएगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सिर्फ 6 महीने का आएगा। देख रहे हो? बी लेट आउट द फर्स्ट फ्लोर फॉर अ रेंट ऑफ 15,000 रुपीज पर मंथ। कब से कब तक? फ्रॉम 1 जुलाई 2024 ना। कंस्ट्रक्शन जब 30 तारीख को कंप्लीट हुआ है तो 1 जुलाई से इसने किराए पर दिया, 15,000 रुपए महीने के रेट से इसने किराए पर दिया। However, the tenant vacated the house on 31st December 2024. तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक ही तो रहा किराएदार उसमें। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने। तो यहां पर जो एक्चुअल रेंट आएगा वो क्या आएगा? 15,000 रुपए इंटू 6। जो एक्चुअल रेंट आएगा वो आएगा 15,000 रुपए इंटू 6। दिस इज व्हाट? 90,000। तो अब जो आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगी वो आएगी विच एवर इज हायर 90,000। फिर इसमें आपने म्यूनिसिपल टैक्सेस जो भी पे किए, म्यूनिसिपल टैक्सेस बी ने कितने पे किए? 8,000 रुपीज पे किए। लेकिन ये जो म्यूनिसिपल टैक्सेस पे किए तो पूरे मकान के पे किए। हम लेट आउट पोर्शन का निकाल रहे हैं, लेट आउट पोर्शन तो 50% है, तो 8,000 रुपीज डिवाइडेड बाई 2, 4,000। अब हो सकता है किसी को डाउट आए कि क्यों सर म्यूनिसिपल टैक्सेस भी तो हो सकता है सिर्फ ऊपर वाले के पे किए हो। नहीं, यहां पर आपको साफ साफ दिया हुआ है, ये देखो, फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ ईच यूनिट, म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ ईच यूनिट। हर यूनिट की आपको म्यूनिसिपल वैल्यू दी हुई है। लेकिन जो टैक्सेस दिए हुए क्या यहां पर भी लिखा है म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड फॉर ईच यूनिट? नहीं। तो टोटल म्यूनिसिपल टैक्सेस अगर इसने 8,000 रुपए दिए हैं तो मतलब 50% सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन के थे, 50% लेट आउट पोर्शन के थे, तो लेट आउट पोर्शन वाले का इंटरेस्ट, लेट आउट पोर्शन वाले का रिडक्शन मिल जाएगा। और यहां नेट एनुअल वैल्यू आ गई नील, यहां नेट एनुअल वैल्यू आ गई 86,000 रुपीज। ठीक है, यहां नेट एनुअल वैल्यू आ गई 86,000 रुपीज। अब हम लोग यहां पर 30% ऑफ एनएवी का रिडक्शन देंगे। कितना? 25,800। 25,800 रुपीज ये हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन लोन देखो, बी ने कितना इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया होगा, इसके लिए एक वर्किंग नोट, क्या वर्किंग नोट 3 बना देंगे। इसके लिए वर्किंग नोट 3 बना देंगे। ठीक है, बी के इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए वर्किंग नोट 3 बना देंगे। ठीक, म्यूनिसिपल टैक्सेस के लिए भी एक वर्किंग नोट बनाए क्या? बना देते हैं। तो म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड के लिए वर्किंग नोट 3 बनाओ और इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए वर्किंग नोट 4 बनाओ, और ये आपकी आ जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये आपकी आ जाएगी। अब एक एक करके वर्किंग नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग वर्किंग नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बनाएंगे वर्किंग नोट 1। व्हाट इज वर्किंग नोट 1? वर्किंग नोट 1 इसका था
ए की प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ऑन लोन, ए की प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ऑन लोन, दिस इज वर्किंग नोट 1. इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर ए, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर ए. ठीक है, अब देखो पर्टिकुलर्स रुपए, इंटरेस्ट फॉर प्रीवियस ईयर 23-24, प्रीवियस ईयर 23-24 में, अच्छा ए ने कितना लोन लिया था? A has availed a housing loan of 20 lakh rupees at 12% per annum on 1st April 2023. ठीक है, तो पूरे 23-24 में 20 लाख पर 12% के रेट से इंटरेस्ट लगा होगा. 20 लाख पर 12%, तो 20 लाख पर 12% आया कितना? 20 लाख पर 12% आया 2,40,000 रुपए. ठीक है, 2,40,000 रुपए. अब यहां पर आप लोग लिखोगे सिंस द कंस्ट्रक्शन गॉट कंप्लीटेड इन प्रीवियस ईयर 24-25, interest paid in the previous year 23-24 shall be treated as pre-construction period interest, pre-construction period interest. ठीक है, therefore 2,40,000 rupees divided by 5 is equal to 48,000 will be allowed every year starting from previous year 24-25. ठीक है, तो यहां पर attributable to previous year 24-25 is 48,000 rupees, और साथ ही साथ इंटरेस्ट फॉर प्रीवियस ईयर 24-25 कितना हो जाएगा? ये भी 20 लाख रुपए पर 12% यानी 2,40,000 रुपए. तो टोटल कितना आ जाएगा? 2,88,000 rupees. And this will be restricted to 2 lakh rupees. This will be restricted to 2 lakh rupees. ठीक है, तो 2,88,000 रुपीज का आपका टोटल इंटरेस्ट आ रहा था, बट दिस विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख रुपीज क्योंकि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है. तो अब ए के केस में हम लोग देखेंगे तो 2 लाख रुपए का यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलेगा, तो जो नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगी वो 2 लाख रुपए की लॉस आ जाएगा. ठीक है, वो 2 लाख रुपए का लॉस आ जाएगा. डन, वो 2 लाख रुपए का लॉस आ जाएगा. आओ वर्किंग नोट 2 बनाते हैं. वर्किंग नोट 2 यहां पर लिखो, सिंस the construction got completed on 30th June 24, it wouldn't have been possible for B to either occupy the property or let it out from 1st April 24.
Therefore, both municipal value and fair rent shall be considered only for 9 months, that is from 1st July 2024 to 31st March 2025. Therefore, municipal value is equal to 9 by 12 of 72,000, 54,000. Fair rent is equal to 9 by 12 of 1 लाख. कितना आया था ये? 75,000. ठीक है, वर्किंग नोट 2 ये हो गया. Since the construction got completed on 30th June 2024, it wouldn't have been possible for B to either occupy the property or let it out from 1st April 2024. Therefore, both municipal value and fair rent shall be considered only for 9 months, that is from 1st July 24 till 31st March 2025. Municipal value आएगी 9 by 12 of 72,000 rupees, that is 54,000 rupees, and fair rent आएगा 9 by 12 of 1 lakh rupees, that is 75,000 rupees. ठीक है, ये हो गया वर्किंग नोट 2. वर्किंग नोट 3 है म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड का. ओके, वर्किंग नोट 3 म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड. Deduction of municipal taxes paid is not allowed. Deduction of municipal taxes paid is not allowed for self-occupied portion. ठीक है, deduction of municipal taxes is not allowed for self-occupied portion. Therefore, 50% of 8,000 rupees, that is 4,000 rupees, is only allowed for the let out portion. Therefore, 50% of 8,000 rupees, that is 4,000 rupees, is only allowed for the let out portion. अब लिखो वर्किंग नोट 4. इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर बी. इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर बी. पर्टिकुलर्स रुपए. Interest paid in previous year 23-24 कितना? अब बी ने लोन लिया है 12 लाख रुपए का 10% के रेट से ऑन 1st जुलाई 2023. तो 12 लाख रुपए का लोन 10% के रेट से 9 महीने के लिए. ठीक है, 1st जुलाई 2023 से लिया है, तो जुलाई 2023 से 31st मार्च 2024 9 मंथ्स का इंटरेस्ट. 12 लाख का 10% 9 महीने के लिए, ये आएगा 90,000. 90,000. फिर लिखो, सिंस द कंस्ट्रक्शन गॉट completed in previous year 24-25, interest paid in previous year 23-24 shall be
considered as pre-construction period interest and shall therefore be allowed as a deduction in 5 equal installments starting from previous year 24-25. तो attributable to previous year 24-25 कितना हो जाएगा? 90,000 divided by 5 या 18,000. ठीक. Interest paid in previous year 24-25 12 लाख इंटू 10%. एक लाख 20,000 या 1,38,000. ठीक है, या 1,38,000. attributable to let out portion, attributable to self occupied portion 50%. तो 1,38,000 divided by 2 69,000. 69,000. ठीक है, तो यहां पर ये आया 69,000 रुपीज. और ये आ गया 69,000 रुपीज. तो यहां तो 69,000 रुपीज का लॉस आया और यहां क्या आएगा? 86,000 माइनस 25,800 माइनस 69,000. यहां पर 8,800 रुपीज का लॉस आ गया. ठीक, तो अब मैं यहां पर लिखूंगा नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 69,000 प्लस 8,800 इज इक्वल टू 69,000 का लॉस प्लस 8,800 का लॉस, यानी 77,800 का लॉस. नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपकी आई है 77,800 रुपीज की. ठीक है, एक नोट आप लोग और लिख लो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए. वर्किंग नोट 5. एक नोट आप लोग और लिखो, ये बाद में आपको हेल्प करेगा. देयर इज नो वेकेंसी इन द let out portion of B's house. There is no vacancy in the let out portion of B's house as soon as the tenant vacated the property. As soon as the tenant vacated the property, B occupied the first floor. B occupied the first floor also. B occupied the first floor also. In case of partly let out property, time wise the property is considered to be let out for the
फॉर द होल पीरियड। ठीक है, प्रॉपर्टी इज लेट आउट, प्रॉपर्टी इज कंसिडर्ड टू बी लेट आउट फॉर द होल पीरियड। बस इतना बहुत क्लियर हो रहा है आई थिंक। अब सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। यस, कंफर्म कर दो फटाफट से। मजा आया इन दोनों क्वेश्चंस को करके? अभी भी पिछले 1 घंटे से हम लोगों ने कुछ भी नया नहीं किया। प्रियंका कह रही है मजा आ रहा है, वेरी नाइस, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। सर इस क्वेश्चन ने हिला डाला, केशव, वेरी गुड। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोगों के पास जो आता है वो आता है एरियर्स ऑफ रेंट। एरियर्स ऑफ रेंट का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि हो सकता है किसी वजह से मुझे पहले रेंट नहीं मिल पाया और इस बार अब मुझे रेंट मिल रहा है। ठीक है, पिछली बार मुझे रेंट नहीं मिल पाया, पिछले किसी भी साल का हो सकता है। अगर मुझे रेंट नहीं मिला होगा तो या तो वो मेरा अनरियलाइज्ड रेंट होगा जिसका रिडक्शन मैं ले चुका हूंगा, या फिर वो मेरा कोई ऐसा रेंट होगा जो मुझे पहले मिला ही नहीं था, डिस्प्यूट पे रहा होगा। मैं अपने किराएदार से कह रहा था कि मुझे 10,000 रुपए का रेंट दो, वो कह रहा था कि नहीं मैं तो 7,000 रुपए का रेंट दूंगा। तो ये जो 3,000 रुपए का रेंट बचा हुआ है ये मेरा डिस्प्यूटेड रेंट है। अब इस साल आकर मुझे वो डिस्प्यूटेड रेंट्स मिल रहे हैं, तो इनको बोलते हैं एरियर्स ऑफ रेंट। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? एरियर्स ऑफ रेंट। तो जो भी ये एरियर्स ऑफ रेंट होते हैं ना, ये जो भी आपके एरियर्स ऑफ रेंट होते हैं, जिस साल ये एरियर्स ऑफ रेंट मिलते हैं उस साल आपको सरकार को इन पर टैक्स देना होता है। इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि वो हाउस प्रॉपर्टी आपकी उस साल थी भी या नहीं थी। हो सकता है आज से 5 साल पहले मेरे पास कोई प्रॉपर्टी थी, तब कोई डिस्प्यूट हुआ था, उसके बाद मैंने उस प्रॉपर्टी को बेच दिया। अब आज अगर मुझे उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी रेंट मिल रहा है तो भी वो मेरे हाथ में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की तरह से टैक्सेबल होगा। ये वाला क्लैरिफिकेशन क्यों दिया? ये वाला क्लैरिफिकेशन इसलिए दिया था क्योंकि यहां के, याद करो, चार्जिंग सेक्शन में ही लिखा हुआ है कि देयर मस्ट बी अ हाउस प्रॉपर्टी एंड असेसी शुड बी द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। तो यहां पर इस चीज को क्लैरिफाई करना पड़ रहा था कि भाई अगर आपकी पहले कोई हाउस प्रॉपर्टी थी जिसके चक्कर में आपको अभी डिस्प्यूटेड रेंट कुछ मिल रहा है या आपका बकाया रेंट पड़ा हुआ था वो आपको मिल रहा है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके पास अभी भी वो प्रॉपर्टी है या नहीं है। अगर आपने वो प्रॉपर्टी पहले कभी बेच भी दी थी, तब भी जब आपकी प्रॉपर्टी थी तब के टाइम से रिलेटेड रेंट अगर आपको अभी मिल रहा है तो आप उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कंसिडर करिए और आप हमें टैक्स पे करिए। ठीक है, इस पे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% का मिल जाएगा और इस पे आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा कि आप बोलो नहीं नहीं मेरा तो लॉयर का खर्चा हुआ, ये हुआ वो हुआ, कुछ नहीं। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 30% का जरूर मिलेगा। ठीक, it means rent under dispute. Recovery is taxable in the year in which it is recovered under the head income from house property, whether the assessee is the owner of the house property or not in that financial year. Any expenditure incurred for the recovery shall be ignored. ठीक है, लेकिन हाँ 30% का आपको रिडक्शन मिल जाएगा। देखो, Mr. Anand sold his residential house property in March 2024. Mr. Anand sold his residential house property in March 2024. In June 2024, he recovered a rent of 10,000 rupees from Mr. Gaurav, to whom he had let out his house for 2 years from April 18 to March 20. अप्रैल 2018 से लेकर मार्च 2020 में इन्होंने मिस्टर गौरव को अपने मकान को किराए पर दिया हुआ था, जिनसे इन्हें अभी इस साल प्रीवियस ईयर 24-25 में 10,000 रुपए की रिकवरी हुई है। He could not realize 2 months rent of 20,000 rupees from him, and to that extent his actual rent was reduced while computing income from house property for assessment year 2021. तो यहां पर अब इन्होंने यही बता दिया है कि ये गौतम नहीं, क्या नाम है, गौरव ने आपको 10,000 रुपए क्यों दिए? क्योंकि गौरव से आपको 20,000 रुपए लेने बाकी थे। अनरियलाइज्ड रेंट था आपका 20,000 रुपीज का, और असेसमेंट ईयर 21-22 में, सॉरी असेसमेंट ईयर 20-21 में आपका जो भी रेंट रिसीव था उसको अनरियलाइज्ड रेंट का डिडक्शन देने के बाद ही कंसिडर किया गया था। तो अब आपको प्रीवियस ईयर 19-20 में तो डिडक्शन मिल गया, असेसमेंट ईयर 20-21 का मतलब क्या हो गया, प्रीवियस ईयर 19-20। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर 19-20 में अनरियलाइज्ड रेंट का डिडक्शन मिल गया और वो अनरियलाइज्ड रेंट अब अभी आपको मिल रहा है, तो इस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा ना। ठीक है, मान लो वहां पर आपको अनरियलाइज्ड रेंट का रिडक्शन मिलता ही नहीं और फिर आपको यहां पर ये पैसा मिलता, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। आप खुद कहते कि भाई तुम 19-20 में तो मेरी इनकम में कंसिडर कर ही चुके हो, अगर तुम 19-20 की मेरी इनकम में कंसिडर कर चुके हो तो अब दोबारा से सेम इनकम पर टैक्स क्यों ले रहे हो, ये आप कह सकते थे। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ, अनरियलाइज्ड रेंट का रिडक्शन इसको प्रीवियस ईयर 19-20 में मिल चुका था। अब अगर ये वाला पैसा आपको इस साल मिल रहा है तो इसको आपको अपनी इनकम में इंक्लूड करना पड़ेगा और टैक्स देना पड़ेगा। Further, he had let out his property from April 20 to February 24 to Mr. Satish.
अप्रैल 2020 से लेकर, मतलब गौरव के जाने के बाद मार्च 2020 में गौरव चला गया, फिर अप्रैल 2020 से लेकर फरवरी 2024 तक इसने अपना मकान सतीश को किराए पर दिया। इन अप्रैल 2022 ही हैड इंक्रीज्ड द रेंट फ्रॉम 12,000 टू 15,000 रुपए पर मंथ। ठीक, अप्रैल 2022 में इसने सतीश से बोला कि भैया अब रेंट बढ़ाना पड़ेगा, 12,000 से काम नहीं चल रहा, 15,000 रुपए महीने का रेंट हम आपसे लेंगे। एंड द सेम वाज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट। अब इस पे सतीश जी फैल गए। सतीश जी ने कहा हम तो एक पैसा नहीं देंगे, 12,000 देंगे। इन सितंबर 2024 द मैटर वाज फाइनली सेटल्ड। केस वेस चला, सितंबर 2024 में मैटर सेटल हुआ। एंड मिस्टर आनंद रिसीव्ड 69,000 rupees as arrears of rent for the period from April 22 till February 24। अप्रैल 2022 से लेकर फरवरी 2024 तक के बीच में जितना भी डिस्प्यूटेड रेंट था उस वो 69,000 रुपीज का रेंट इनको अभी इस साल मिल गया है। ठीक, तो इनको दो एरियर्स ऑफ रेंट मिले। एक तो ये 10,000 रुपए मिले गौरव से और ये 69,000 रुपीज मिले सतीश से। Would the recovery of unrealized rent and arrears of rent be taxable in the hands of Mr. Anand, and if so, in which year? Definitely taxable होगा। कौन से साल में taxable होगा? Previous year 24-25 में ही taxable होगा। आओ इसका आंसर लिखो। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 लिखो। Since the unrealized rent was recovered in the previous year 24-25, it shall be taxed in the assessment year 25-26। ठीक है, it shall be taxed in the assessment year 25-26। This is irrespective of the fact that Mr. Anand is no longer the owner of the house property in respect of which such arrears are received। ठीक है, this is irrespective of the fact that Mr. Anand is no longer the owner of the house property in respect of which such arrears are received, right? And a standard deduction of 30% shall be allowed to Mr. Anand। A standard deduction of 30% shall be allowed to Mr. Anand. Computation of income from house property। Computation of income from house property, देखो particulars रुपए, सबसे पहले 10,000 रुपए मिले थे ना इसको, सबसे पहले इसको 10,000 रुपए मिले अनरियलाइज्ड रेंट वाले। ठीक है, अनरियलाइज्ड रेंट 10,000 रुपए और उसके बाद डिस्प्यूटेड रेंट, एरियर्स ऑफ रेंट, ₹69,000। टोटल आया 79,000 रुपीज। लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, $79,000 का 30%, ये आया 23,700। $55,300। ठीक है, 55,300 ये आ जाएगी आपकी इनकम फ्रॉम
हाउस प्रॉपर्टी। ये आई आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, दिस इज योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। डन हो गई बात? वेरी गुड। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कॉम्पोजिट रेंट का। अब कॉम्पोजिट रेंट का क्या मतलब होता है मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। कॉम्पोजिट रेंट का मतलब होता है कि जब आप सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के लिए रेंट नहीं ले रहे हो, हाउस प्रॉपर्टी के साथ साथ उसके साथ जो आप एसेट्स दे रहे हो उसके लिए भी आप रेंट ले रहे हो। ठीक है, तो जैसे अगर फर्निश्ड हाउस प्रॉपर्टी आप दे रहे हो, फर्निश्ड हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया कि उस मकान में पलंग भी पड़ा हुआ है, अलमारियां भी हैं, एसी भी है, फ्रिज वगैरह भी है, पूरा फर्नीचर वगैरह सब कुछ है, तो इसको बोलते हैं फर्निश्ड अपार्टमेंट। ठीक है, अब अगर आप फर्निश्ड अपार्टमेंट के लिए रेंट ले रहे हो तो जाहिर सी बात है आप सिर्फ और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के लिए रेंट नहीं लोगे। आपने जो भी फर्नीचर प्रोवाइड किया है, जो भी आपने अपने एसी, फ्रिज, अलमारी, पलंग और सोफे और ये सारी चीजें आपने प्रोवाइड की हैं, आप इसके लिए भी रेंट लोगे। तो इसको बोलते हैं कॉम्पोजिट रेंट। राइट, अब अगर रेंट अग्रीमेंट में आपने स्पेसिफाई कर दिया कि देखो हाउस प्रॉपर्टी के लिए मैं इतना रेंट ले रहा हूं और जितना भी फर्नीचर वगैरह में दे रहा हूं, जो भी आपको बाकी के एसेट्स दे रहा हूं, उसका मैं आपसे ये वाला रेंट ले रहा हूं, तो जितना भी हाउस प्रॉपर्टी वाला रेंट है उसको तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की तरह से ट्रीट कर लिया जाएगा, और जो बाकी है उसको या तो पीजीबीपी में टैक्सेबल किया जाएगा या तो आईएफओएस में टैक्सेबल किया जाएगा। पीजीबीपी मतलब प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो अगर आपका धंधा ही ये है तो फिर ये इनकम पीजीबीपी में जाएगी, लेकिन अगर आपका धंधा ये नहीं है तो फिर ये आईएफओएस में जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। और अगर अग्रीमेंट सेपरेबल नहीं है, अगर अग्रीमेंट सेपरेबल नहीं है मतलब एक ही अग्रीमेंट में आपने कॉम्पोजिट तरीके से चार्ज कर दिया कि मकान प्लस फर्नीचर का हम आपसे 15,000 रुपए महीने का किराया लेंगे, तो ये आपका क्या हो गया, ये कॉम्पोजिट रेंट हो गया। तो फिर अब यहां पर टोटल रेंट जो है वो या तो पीजीबीपी में या तो आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा। फिर ये वाला जो रेंट होगा ये इसमें हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, अब इधर देखो, if the let out of the property is not possible without other assets, the total rent is taxable under the head PGBP IFOS whether agreement is separable or not। ठीक है, तो पता है आपको कुछ ना वर्क स्टेशंस होते हैं, कुछ वर्क स्टेशंस होते हैं। अब ये वर्क स्टेशंस क्या होते हैं, जैसे आप कहीं पर भी जाओगे तो वहां पर वर्क स्टेशंस में क्या होता है कि आप को वर्किंग स्पेसेस ले सकते हो। मुझे सपोज काम करना है, मुझे काम करने के लिए क्या चाहिए, इंटरनेट चाहिए, कुर्सी टेबल चाहिए, राइट, मुझे कोई आज सच बहुत बड़ा ऑफिस नहीं चाहिए, तो मैं को वर्किंग स्पेस को रेंट कर लेता हूं। तो को वर्किंग स्पेस में क्या होता है, एक बड़ी सी फ्लोर है, वहां पर छोटे छोटे क्यूबिकल्स बने हुए हैं, वहां पर सब लोग आकर अपने क्यूबिकल को रेंट करते हैं, वहां पर उनको टेबल, चेयर, वाईफाई, इंटरनेट वगैरह सब कुछ मिलता है और वो बैठकर वहां पर अपना काम करते हैं और सिर्फ अपने उस क्यूबिकल का किराया वो लोग देते हैं। ठीक है, सिर्फ अपने उस क्यूबिकल का किराया देते हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या अगर मैं एक को वर्किंग स्पेस का ओनर हूं तो मैं को वर्किंग स्पेस तो क्या मैं को वर्किंग स्पेस को किराए पर दे सकता हूं विदाउट द टेबल, चेयर एंड द वाईफाई? क्या मैं किसी से ये एक्सपेक्ट करूंगा कि हाँ मैं आपको को वर्किंग स्पेस दे रहा हूं लेकिन आप अपनी टेबल, चेयर, वाईफाई वगैरह सब आप लोग अपने आप को ये सारी चीजें आपको अपने आप ही लेकर आना पड़ेगा, हमारे पास तो नहीं है? ऐसा तो नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब यहां पर जो मैं लेट आउट कर रहा हूं अपनी प्रॉपर्टी को, क्या वो बाकी एसेट्स के बिना लेट आउट करना पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। और अगर प्रॉपर्टी को बाकी एसेट्स के बिना लेट आउट करना पॉसिबल नहीं है तो जो भी कॉम्पोजिट रेंट आएगा वो हमेशा या तो पीजीबीपी में या तो आईएफओएस में टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में वो कभी भी टैक्सेबल नहीं होगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? क्या ये समझ में आ रही है? लीशा कह रही है लाइब्रेरी कह सकते हैं, बिल्कुल। तो अब लाइब्रेरी में भी अगर आप जाओगे तो वहां पर ऐसा तो नहीं होगा ना कि जो टेबल और चेयर है वो भी आप ही से मंगाई जाएगी। लाइब्रेरी एक कमरा है, ठीक है, अब उस कमरे में लेकिन जो भी फर्नीचर है वो तो लाइब्रेरियन को प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। ठीक है, वो कमरा वो कमरे के अंदर जो भी फर्नीचर वगैरह है वो लाइब्रेरियन को प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, है ना। चलो ये हो गया। अब आप देखो नेक्स्ट है हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, बिल्डर की तरह से। अगर मैं बिल्डर हूं, मैं मकान बना कर बेचता हूं, तो मेरे पास जितने भी मकान बने हुए होंगे वो तो सब मेरे लिए स्टॉक इन ट्रेड होंगे ना, मेरे लिए तो वो मेरा स्टॉक है। कोई भी आएगा मैं कहूंगा हाँ ये मकान है, जाओ ले जाओ, कोई भी आएगा कहूंगा ये मकान है, ले जाओ। तो अगर मैं एक बिल्डर हूं, मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, तो फिर जितने भी मेरे मकान हैं वो सारे के सारे तो स्टॉक इन ट्रेड होंगे। जितने भी मेरे मकान है वो सारे के सारे मेरे क्या होंगे, वो सारे मेरे होंगे स्टॉक इन ट्रेड। अब देखो, अगर मैं इन हाउस प्रॉपर्टीज को बेच देता हूं तब ये मेरे हाथ में पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल होगा। पीजीबीपी क्यों? क्योंकि मैं एक बिल्डर हूं।
अगर मैं एक बिल्डर नहीं हूं और मैं हाउस प्रॉपर्टी बेच रहा हूं तो कैपिटल गेन्स हेड में टैक्सेबल होगा, क्योंकि तब हाउस प्रॉपर्टी मेरे लिए कैपिटल एसेट बन जाएगी, स्टॉक इन ट्रेड नहीं। लेकिन अगर मेरा बिजनेस ही यही है कि मैं मकान बना बनाकर बेचता हूं, तो जो भी मकान मेरे पास बने हुए पड़े हुए हैं वो सारे के सारे मेरे लिए स्टॉक इन ट्रेड हो जाएंगे। वो सारे के सारे मेरे लिए क्या हो जाएंगे? वो सब मेरे लिए स्टॉक इन ट्रेड हो जाएंगे। और अगर ये मेरे लिए सारे के सारे स्टॉक इन ट्रेड हो जाएंगे तब तो कोई पंगा ही नहीं है। ठीक है, तो जब मैं इन स्टॉक इन ट्रेड को बेचूंगा तो क्या होगा? When I'll sell these houses, स्टॉक इन ट्रेड वाले मकान में बेचूंगा तो क्या होगा? तो फिर इसको हम लोग बोलेंगे कि ये मेरी पीजीबीपी की इनकम है। लेकिन जब मैं इन मकानों को किराए पर दूंगा तो इसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड के अंदर टैक्सेबल कर लिया जाएगा। ठीक है, जब मैंने किराए पर दूंगा तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ये टैक्सेबल हो जाएंगे। राइट? एक अमेंडमेंट ये आया था कि अगर आपने प्रॉपर्टी बना ली, सपोज आपकी प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन हुआ प्रीवियस ईयर 24-25 में, प्रीवियस ईयर 24-25 मतलब 31 मार्च 2025, 31 मार्च 2025 के बाद 2 साल तक अगर आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिकी तो तीसरे साल से उसको डीम्ड लेट आउट मानकर उस पर टैक्स उसको डीम्ड लेट आउट मानकर उसको टैक्सेबल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर जैसे यहां पर एग्जांपल भी है, where the house property is held as stock in trade and not let out during the previous year, then NAV shall be treated as nil for a period of 2 years from the end of the financial year in which the construction is completed. Example, DLF builder completed construction of one house property on 16th July 2023. In this case, if such house property is not let out, अगर इस house property को let out नहीं किया गया, then NAV of such house property shall be treated as nil till 31st March 2026. क्यों? क्योंकि 16 जुलाई 2023 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, मतलब 31 मार्च 2024 ये वाला साल है, और उसके बाद 31 मार्च 2025, 31 मार्च 2026, इन 2 सालों तक कुछ नहीं माना जाएगा। लेकिन फ्रॉम प्रीवियस ईयर 26-27 दिस हाउस प्रॉपर्टी शैल बी ट्रीटेड एज डीएलओपी, मतलब डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी, एंड इनकम शैल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक, अब हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है डीम्ड ओनरशिप का। क्लास हो सकता है 5-10 मिनट एक्सटेंड हो जाए, उससे फायदा क्या होगा? ये हम लोगों का टॉपिक यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज द लास्ट टॉपिक, डीम्ड ओनरशिप, और फिर कल आपकी छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि डीम्ड ओनरशिप वाला मैं आप लोगों के साथ अभी आज डिस्कस कर लूंगा, तो कल आपकी छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि आज हाउस प्रॉपर्टी वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर मंडे से हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरीज को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो कल आपकी छुट्टी हो जाएगी, तो आज 5-10 मिनट थोड़ा सा आप लोग एक्स्ट्रा रुक जाओ। राइट, जीएसटी की क्लास में भी हम लोग आज ही सप्लाई को कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपकी कल छुट्टी हो जाएगी, देन फिर मंडे से वी कैन स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर। राइट, देखो डीम्ड ओनरशिप का जो कॉन्सेप्ट होता है काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। मैं आपको एग्जांपल दे देकर समझाता हूं। ठीक है, सपोज ये हूं मैं और ये है मेरी वाइफ चारू। लेट से चारू मैम जो है वो एक होम मेकर है। होम मेकर इज द फैंसी वर्ड फॉर हाउसवाइफ। ठीक है, लेट से माय वाइफ इज अ होम मेकर एंड शी इज अर्निंग नील इनकम। इनकी जो इनकम है वो नील है, इनकी जो इनकम है वो नील है। मेरे पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, मेरे पास एक हाउस प्रॉपर्टी है। मैंने क्या किया, मैंने अपनी हाउस प्रॉपर्टी अपनी वाइफ चारू मैम को ट्रांसफर कर दी। मैंने अपनी हाउस प्रॉपर्टी अपनी वाइफ चारू मैम को ट्रांसफर कर दी विदाउट एनी कंसिडरेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने गिफ्ट दे दिया। ठीक है, मैंने कहा यार तुम चिंता मत करो। इसके पीछे लॉजिक क्या था? इसके पीछे लॉजिक था, सपोज अगर इससे इनकम आ रही है 2 लाख रुपए की, लेट्स से इससे इनकम आ रही है 2 लाख रुपए की। ठीक है, मेरी तो इनकम है, मेरे हाथ में ये 2 लाख रुपए टैक्सेबल हो जा रहा है एट द रेट ऑफ 30%, क्योंकि मैं 30% टैक्स ब्रैकेट में आ रहा हूं। लेकिन क्योंकि चारू मैम एक होम मेकर है और इनकी कोई इनकम नहीं है, तो मैंने क्या किया, मैंने इस हाउस प्रॉपर्टी को इनके नाम पर ट्रांसफर कर दिया। अब इस हाउस प्रॉपर्टी का पेपर में ओनर कौन हो गया? एज पर द रिकॉर्ड्स, एज पर द डॉक्यूमेंट्स, इस हाउस प्रॉपर्टी का ओनर कौन हो गई? चारू मैम हो गई। तो अब ये जो 2 लाख रुपए की इनकम आई, ये 2 लाख रुपए की इनकम किसकी आएगी? ये 2 लाख रुपए की इनकम चारू मैम की आएगी। ये 2 लाख रुपए की इनकम चारू मैम की आएगी। और अगर ये 2 लाख रुपए की इनकम चारू मैम की आएगी, चारू मैम की वैसे भी नील इनकम है और 2.5 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट होता है, 2.5 लाख रुपए तक तो एक भी पैसा टैक्स नहीं लगता। तो इस 2 लाख रुपए पर मैंने टैक्स बचा लिया। इस 2 लाख रुपए पर जो मेरे हाथ में 30% के रेट से टैक्सेबल हो रहा था, 60,000 रुपीज का मुझे टैक्स देना पड़ रहा था, यहां पर 2 लाख रुपए मैंने चारू मैम के यहां ट्रांसफर कर दिया। तो अब चारू मैम के जेब से तो एक पैसा भी टैक्स नहीं गया, तो मैंने टैक्स बचा लिया। यस और नो?
ये बात आपको समझ में आ रही है? ये बात आपको समझ में आ रही है? हाउस प्रॉपर्टी जब तक मेरे पास थी तो 2 लाख रुपए की इनकम 30% टैक्स ब्रैकेट में टैक्सेबल हो रही थी, लेकिन जब मैंने 2 लाख रुपए की इनकम को ट्रांसफर कर दिया चारू मैम को, कैसे? मैंने हाउस प्रॉपर्टी की ट्रांसफर कर दी, मैंने एक ट्रांसफर डीड बनाई, मैंने इनसे कुछ पैसे वैसे नहीं लिए, मैंने कहा मेरी बीवी है यार, मैं अपनी बीवी से पैसे लूंगा क्या, गिफ्ट दे रहा हूं अपनी बीवी को, और मैंने हाउस प्रॉपर्टी इनको ट्रांसफर कर दी। हाउस प्रॉपर्टी जब इनको मैंने ट्रांसफर कर दी तो 2 लाख रुपए की इनकम अब इनकी हो गई, और मैंने सरकार से कहा यार देखो ये तो अप टू 2,50,000 रुपीज एग्जेम्प्ट है। सरकार ने कहा हमारे माथे पर कुछ बहुत बड़ा बड़ा लिखा नहीं है। सरकार ने कहा ऐसे केस में आपको ही ओनर माना जाएगा निशांत कुमार, आप कहलाएंगे डीम्ड ओनर, आप कहलाएंगे डीम्ड ओनर। तो आप अगर डीम्ड ओनर हो जाएंगे तो इस 2 लाख रुपए पर टैक्स कौन पे करेगा? आप ही पे करेंगे, क्योंकि ये 2 लाख रुपए आप ही की इनकम मानी जाएगी। ठीक है, तो इफ एनी इंडिविजुअल ट्रांसफर्स हाउस प्रॉपर्टी टू हिज और हर स्पाउस विदाउट कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, देन सच इंडिविजुअल इज ट्रीटेड एज अ डीम्ड ओनर ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी। अब इसका एक एक्सेप्शन है, ट्रांसफर इन कनेक्शन ऑफ लिविंग अपार्ट। ट्रांसफर इन कनेक्शन ऑफ लिविंग अपार्ट मतलब क्या हो गया? अगर हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स वगैरह हो जाता है और उस केस में हस्बैंड अपनी वाइफ को मकान ट्रांसफर करता है, तो फिर वहां पर जो सरकार है वो आपका खून नहीं चूसती, वहां पर सरकार आपकी स्पाउस का खून चूसेगी कि मतलब सेपरेशन हो गया ना, अब अगर डिवोर्स हो गया, सेपरेशन हो गया, तो भाई तुम मकान भी ले लो और तुम टैक्स भी मत पे करो उससे, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर सेपरेशन हो गया और हस्बैंड ने वाइफ को मकान ट्रांसफर किया या वाइफ ने हस्बैंड को मकान ट्रांसफर किया, तो जिसके पास भी मकान है सरकार उसी से कहेगी भाई तुम ही टैक्स दो। अब हम डीम्ड ओनर वगैरह वाला कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अब तुम दोनों अलग अलग हो गए हो। ठीक है, ऑलराइट, ये देखो क्वेश्चन नंबर 23। Mr. Rajesh transfers a property of market value 38 lakh rupees to his wife out of natural love and affection. Income from such property is 2 lakh rupees. How will the property income be taxed? तो ये इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? ये इनकम मिस्टर राजेश के हाथ में ही टैक्स हो जाएगी। मिस्टर राजेश की वाइफ के हाथ में ये इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। ये इनकम मिस्टर राजेश की वाइफ के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक, नेक्स्ट आता है, अगर मैं अपने माइनर चाइल्ड को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता हूं तो जब लॉ ने स्पाउस को ट्रांसफर करने से मना कर दिया या ऐसा बोल दिया कि स्पाउस को अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो तो आप ही डीम्ड ओनर हो जाओगे, तो मैंने दूसरा तरीका निकाला। मैंने कहा कि मैं अपने बच्चे को ट्रांसफर कर दूंगा। बच्चे को ट्रांसफर करने से कौन ही रोक सकता है? तो ये हूं मैं, ये है चारू मैम मेरी वाइफ, हम दोनों का एक बच्चा है, उसका नाम रख दिया हमने चुन्नू। ठीक है, उसका नाम हमने रख दिया चुन्नू। अब चुन्नू को अगर मैं अपनी हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूं, अगर मैं चुन्नू को अपनी हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूं, चुन्नू है माइनर, चुन्नू माइनर है, 18 साल से कम की उम्र है, तो हाउस प्रॉपर्टी मैंने चुन्नू को ट्रांसफर कर दी। अब इसकी जो भी इनकम आएगी वो चुन्नू के पास आएगी, मैंने अपना टैक्स बचा लिया। सरकार फिर से बोलेगी हमारे माथे पर कुछ बड़ा बड़ा लिखा है कि तुमने अगर माइनर को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की विदाउट एनी कंसिडरेशन या फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो तुम ही डीम्ड ओनर माने जाओगे, तुम ही डीम्ड ओनर माने जाओगे। तो इससे जो भी इनकम आएगी उस पर तुम्हें ही टैक्स देना होगा। इसका भी सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि अगर आप अपनी माइनर मैरिड डॉटर को, अगर आप अपनी माइनर मैरिड डॉटर को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो, ठीक है, अगर आप अपनी माइनर मैरिड डॉटर को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो तो उससे जो भी इनकम आएगी वो फिर माइनर मैरिड डॉटर के हाथ में ही टैक्सेबल होगी। Mr. Amit gifts a property valuing 10 lakh rupees to his minor child. The annual income from such property is 2 lakh rupees. How will the property income be taxed? तो Mr. Amit के हाथ में ही ये property income taxable हो जाएगी। ठीक है, Mr. Amit के हाथ में ही ये property income taxable हो जाएगी, राइट? चुन्नू मुन्नू क्या सर है जी नहीं बोल सकते? लड़कों के साथ अन्याय हुआ है, क्यों? माइनर कब से मैरिड होने लगे? होते हैं हेमंत, बाल विवाह बहुत होता है, बिल्कुल माइनर होते हैं। आपने दंगल नहीं देखी? ठीक है, 14-15 साल की उम्र में, 12-13 साल की उम्र में शादी कर देते हैं बच्चों की कई सारे लोग। कई जगहों पर होता है, माइनर्स की शादी करा दी जाती है। ठीक है, चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है ये पॉइंट, देखो, होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल एस्टेट। इट मीन्स अ प्रॉपर्टी विच इज नॉट लीगली डिविजिबल
तो अगर कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको लीगली आप डिवाइड नहीं कर सकते, तो जो उसका मेन ओनर है उसी को डीम्ड ओनर बोल दिया जाता है। इसमें बहुत ज्यादा आप लोगों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी देखो यहां पर, व्हाट विल बी योर आंसर इफ in the above case Mr. Amit has gifted the house property to his minor married daughter। तो अगर माइनर मैरिड डॉटर को दिया होता तो माइनर मैरिड डॉटर ही टैक्स पे करती, ठीक। ओके, तो पॉइंट नंबर 3, होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल एस्टेट। तो इम्पार्टेबल एस्टेट मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसको लीगली डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो जो मेन ओनर है उसी को बोला जाता है कि वही आपका जो मेन ओनर है दैट इज ओनली द डीम्ड ओनर, उसी को डीम्ड ओनर बोला जाता है। तो इम्पार्टेबल एस्टेट से जो भी इनकम होगी वो सब मेन ओनर जो उसका है उसी के हाथ में वो टैक्सेबल होगी। अब इसमें और ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो जैसे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस होते हैं, अब रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस में क्या हो जाता है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जितने भी फ्लैट्स हैं किसी भी एक सोसाइटी में, वो सारे के सारे फ्लैट्स किसको बिलोंग कर रहे हैं, वो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन उन फ्लैट्स में कई सारे लोग रह रहे हैं ना, तो यहां पर यह बोला गया कि जितने लोग उन प्रॉपर्टीज में रह रहे हैं, जिस प्रॉपर्टी में आप रह रहे हो, आप ही उस प्रॉपर्टी के डीम्ड ओनर हो। मतलब सिंपल एग्जांपल अगर मैं लेता हूं कि एक्सप्रेस ग्रीन रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन, एक सपोज बिल्डिंग है, ठीक है, एक्सप्रेस ग्रीन रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, सपोज एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, एक पूरी सोसाइटी है एक्सप्रेस ग्रीन। अब मैं सपोज उसके फ्लैट नंबर लेट्स से 1 में रह रहा हूं अब फ्लैट नंबर 1 में अगर मैंने फ्लैट नंबर 1 को किराए पर दिया, उससे जो इनकम आएगी, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये इनकम तो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की है? द आंसर इज नो, ये इनकम मेरी है, कॉमन सेंस है ये, ठीक है। इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, शेयर होल्डर्स या मेंबर्स आर ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी, राइट। नेक्स्ट, in case of immovable properties, if possession is acquired in part performance of a contract, then the assessee is treated as deemed owner from the date on which he obtained the possession। इसका सिंपल सा मतलब मैं आपको बताता हूं। सपोज मेरे पास एक प्रॉपर्टी है और आप मेरे पास आए, आपने मुझसे कहा कि सर प्रॉपर्टी मुझे बेच दो, मैंने कहा ले लो, ठीक है, मैंने कहा ले लो। अब क्या हुआ कि आपने मुझे पैसे दे दिए, लेकिन जो लीगल ओनरशिप है ना वो ट्रांसफर नहीं हो पाई। आपने मुझे पैसे दे दिए लेकिन लीगल ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो पाई, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से परफॉर्म हो पाया? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट की पार्ट परफॉर्मेंस हुई, आधी परफॉर्मेंस हुई, आपने मुझे पैसे दे दिए और लेकिन जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके नाम पर ट्रांसफर नहीं हो पाई, ठीक है। आपने मुझसे कहा कि सर रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर कर, तो मैंने कहा हाँ यार कर दूंगा, अभी मैं बाहर हूं। मैंने कहा आप चिंता मत करो, मैंने आपसे कहा आप चिंता मत करो, रजिस्ट्रेशन वाली फॉर्मेलिटीज हम लोग पूरी कर लेंगे, आप जाओ मकान खाली है और रहने की कंडीशन में आप मकान में रहने लग जाओ, ठीक है। पैसे आपने मुझे दे ही दिए, सिर्फ ये लीगल एग्रीमेंट करना बाकी रह गया, तो इसको हम लोग इत्मीनान से करते रहेंगे, अभी मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूं, लेकिन आप उस मकान में जाओ, रहने लग जाओ। आपने कहा ठीक है। अब आपने क्या किया, आप मुझे पैसे तो दे चुके हो, आपने उस मकान में रहने के बजाय उसको किराए पर दे दिया। अब जब आपने इस मकान को किराए पर दिया तो इससे इनकम आई, जब इनकम आई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने आपसे कहा कि भाई तुमने इनकम कमाई है हाउस प्रॉपर्टी से, लाओ इस पर टैक्स दो, तो आपने बोल दिया है मेरी प्रॉपर्टी थोड़ी है, प्रॉपर्टी तो निशांत सर की है। आपने बोल दिया, इनकम टैक्स वालों को आपने बोला कि प्रॉपर्टी तो निशांत सर की है, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स पे देखो अभी भी निशांत सर का नाम है, मेरा नाम नहीं है, ठीक है। तो यहां पर लॉबिंगस कह रहे हैं मतलब कुछ भी इतना ज्यादा ऐसे लीगल और स्ट्रिक्ट और ये सब थोड़ी होना है। आप सब्सटेंस ओवर फॉर्म देखो ना, आप रहे हो, पैसे आप दे चुके हो, सिर्फ नाम ही तो ट्रांसफर करना बाकी है, तो यू विल बी द डीम्ड ओनर, ठीक है। लास्ट आता है, इफ एनी हाउस प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड अंडर अ लॉन्ग टर्म लीज 12 years और मोर, देन एक्वायरर इज ट्रीटेड एज अ डीम्ड ओनर। अब यहां पर मैं आपको प्रॉपर्टी बेच नहीं रहा हूं, लेकिन यहां पर मैंने आपसे एग्रीमेंट कर लिया कि 12 साल से या सपोज 15 साल के लिए इस मकान को आपको मैंने किराए पर दिया हुआ है, आप मुझे लीज पेमेंट्स करते रहोगे और 15 साल के लिए मैंने ये प्रॉपर्टी आपको किराए पर दे दी है। अब अगर आप इस प्रॉपर्टी को किराए पर फर्दर देते हो तो इससे जो भी इनकम आती है वो आप ये नहीं बोल सकते कि इसके ओनर तो अभी भी निशांत सर है, मैंने तो सिर्फ इसको लीज पर लिया हुआ है। लॉ कहता है कि नहीं, तुमने लॉन्ग टर्म लीज के लिए लिया है तो डीम्ड ओनर तुम ही माने जाओगे। देखो, Mr. Anuj gives his house property to Mr. Dinesh for a lease of 20 years. However, the lease is to be renewed by Mr. Dinesh every year. How will the property income be taxed? अब यहां पर देखो, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मिस्टर अनुज ने क्या किया, मिस्टर अनुज ने मिस्टर दिनेश को अपना मकान लीज पर दिया 20 सालों के लिए। तो सुनते ही दिमाग में आया रे 12 साल से ज्यादा की लीज है, तो डीम्ड ओनर कौन हो जाएंगे? डीम्ड ओनर मिस्टर दिनेश हो जाएंगे। लेकिन पंगा यहां पर क्या फंसा रखा है? पंगा यहां पर यह फंसा रखा है कि हर साल के बाद आपको अपनी लीज को रिन्यू कराना पड़ेगा।
तो भाई अगर हर साल के बाद आपको अपनी लीज को रिन्यू कराना पड़ेगा तो अनुज के हाथ में पावर आ गई ना। दिनेश आया किसी एक साल कि भाई अगले साल के लिए मेरी लीज रिन्यू कर दो, अनुज ने मना कर दिया कि ना मैं तो नहीं रिन्यू कर रहा, मेरी मर्जी। तो क्या ट्रूली 12 साल से ज्यादा के लिए मकान को लीज पर दिया गया? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या यहां पर डीम्ड ओनर दिनेश को माना जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। यहां पर ओनर अनुज ही रहेगा। सिर्फ नाम के लिए यहां पर हो गया कि 20 साल के लिए प्रॉपर्टी को लीज पर दिया हुआ है, लेकिन उसकी कंडीशंस ऐसी हैं कि हर साल के बाद आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। तो अगर हर साल के बाद रिन्यू कराना पड़ेगा तो किस बात का 20 साल के लिए लीज पर दिया हुआ है? दूसरा देखो, लेकिन what will your answer be if in the above case Mr. Anuj gives his house property on a lease to Mr. Dinesh for 2 years? अगर मिस्टर अनुज मिस्टर दिनेश को 2 साल के लिए लीज पर देते हैं and Mr. Dinesh can get the lease renewed for another 2 years on payment of a specified sum and so on for indefinite period. और मिस्टर दिनेश के पास अभी ये ऑप्शन है कि वो एक स्पेसिफाइड सम दें और अपनी इस प्रॉपर्टी की लीज को रिन्यू करवाते रहें फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड। 2-2 साल के लिए रिन्यू करवाते रहेंगे फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड। ठीक है, तो अब यहां पर इस वाले केस में क्या हुआ कि अनुज ने दिनेश को अपनी प्रॉपर्टी दी, अनुज ने दिनेश को अपनी प्रॉपर्टी 2 साल के लिए लीज पर दी और कंडीशन क्या है कि पहले से ही एक पैसा डिसाइड कर लिया गया है, दिनेश जब चाहे जितनी बार चाहे उतना पैसा दे और इस प्रॉपर्टी को 2-2 साल के लिए रिन्यू करवाता जाए। और अगर दिनेश इस प्रॉपर्टी को हर साल मतलब हर 2 साल बाद 2-2 साल के लिए रिन्यू करवाता जाएगा तो क्या ये ऑटोमेटिकली 12 साल से ज्यादा की लीज हो गई? क्या ये ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म लीज हो गई? तो ऐसे केस में डीम्ड ओनर कौन माना जाएगा? ऐसे केस में दिनेश डीम्ड ओनर माना जाएगा। ऐसे केस में दिनेश डीम्ड ओनर माना जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके सॉल्यूशंस मैं आपको पीडीएफ में करके दे दूंगा और आप इन क्वेश्चंस को अपने आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हो। और इसी के साथ हम लोगों का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाला चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो जाता है। मुझे सीरियसली बताओ कैसी फील आ रही है एक पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करके? थैंक यू आदित्य सोनी, थैंक यू। कम ऑन कम ऑन, कैसी फील आ रही है? बहुत अच्छी, ग्रेट। तो एक हेड आप लोगों का यहां पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एक हेड आप लोगों का यहां पर कंप्लीट हो चुका है। मंडे को अब हम लोग मिलेंगे, कल आपकी कोई क्लास नहीं होगी एंड मंडे को जब हम लोग मिलेंगे तो वी विल स्टार्ट विद इनकम फ्रॉम सैलरीज। ठीक है, विल स्टार्ट विद इनकम फ्रॉम सैलरीज। ये somebody was asking me कि गूगल ड्राइव का लिंक और नोट्स कहां से मिलेंगे वगैरह वगैरह। ये ठीक है, चलो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर। दोपहर को मिलते हैं 2:30 बजे जीएससी की क्लास के लिए। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।